So hello guys, welcome back to another video. So after watching this video you'll get a lot of information. I guess so all the guarantees that were given by the top two parties in India, BJP and Congress. So before getting any further into the video, I'm just going to say you to please subscribe and press the bell icon, comment and share, and at least like if you like this video, because these small clicks from you mean a lot to me. So now, into the video. First we are going to talk about all the guarantees that were given by Congress party. So Congress parties, there are 25 guarantees that they have given in 5 different parts. They have divided it. So the powerful leaders like Mallikarjuna Kharge and Priyanka Gandhi, along with the main one currently Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and others, made out these 5 nyais: Panch Nyay, Hissedar, Yuva, Shramik, Nari and Kisan. So in each there are 5. So this is how it looks. So I'm going to say it everyone like one by one, but you can also have a view over here. If it's blurry, I'm so sorry guys, I could not do any more further into this. But now let's discuss about it. So out of the Panch Nyay, first we'll go with the Hissedar Nyay. So in Hissedar Nyay, the first one is Ginti Karo. Social, economic and caste census will be taken. Then second one is Arakshan Ka Hak, where 50% cap on SC, ST and OBC. That reservation used to be there, right? They'll be removing it and through a constitutional amendment. Then SC and ST subplan, that is a special budget for SC, ST that will be equal to the share of their population. Then Jal Jangal Zameen Ka Kanuni Hak, Forest Rights Act, all of them will be like settled down in under 1 year itself. Then Apni Dharti, Apna Raj, all the inhabitants where STs are more, right, places, it will be notified as scheduled areas. Then the next Nyay, that is the Kisan Nyay, where it is for farmers, that is Sahi Dam is the first one. MGP, legal guarantee at Ramanathan formula. Then Karza Maafi Ayog, that is the standing loan waiver commission for farmers. Then Bhima Bhugtan Ka Sira transfer, guaranteed insurance payment within 30 days of crop loss. Then it will be Sahi Ayat Niryat Niti, that will be like for the stable import-export policy that will benefit the farmers. Then GST Mukt Kheti, that will be like it will remove all the GSTs and all, they don't need to pay, the farmers don't need to pay at all. Then the third Nyay, that is the Shramik Nyay. So it is Swasthya Adhikar. First one is, that is the right to health that provides universal health care, that will like the law that will be able to like give them free essential diagnostics, medicines, treatments, surgeries and rehabilitative and palliative care. Then next is Shram Ka Samman, national minimum wage of 400 rupees per day, including of MG and REGS workers. It's a particular type of workers which even I don't know, first time I'm listening also. Then it is Sehri Rozgar Guarantee, that is the Employment Guarantee Act for urban areas, it will be improved. Then Samajik Surakshan, that is insurance and insurance, life insurance and accident insurance will be given for all of the unorganized workers. Then next one is Suraksha Rozgar. In this, where it will be like all of those people who are having the core government functions, they will stop all of the contractualizations of employment. Next we'll go to the Yuva Nyay. Yuva Nyay's first one is Bharti Bharosa. So in this there will be 30 lakh new central government jobs according to a job calendar itself, of course. And the second one will be Pehli Naukri Pakki. So that is they will be providing new apprenticeship or work at the central government level itself for the educated youth who will be getting 1 lakh per year, that is approximately 8,500 rupees per month according to what they have said. Then paper leak se mukti, there will be a law that will completely end all paper leaks. Then gig economy mein samajik suraksha, so all of the gig workers will have like better social security and working conditions, it will be improved for them. Then Yuva Roshni,
rupees 5,000 crore startup fund for all the youth. Then next one, the last one, that is Nari Nyay, that is for women it is made for. So first one is Mahalakshmi. It will be giving rupees 1 lakh per year for one woman across like all the poor families and all. Every poor family I meant, not all for 1 lakh. So then the second one is Adi Abadi Purna Hak. So here 50% women will get reservation in new government, central government jobs. Then Shakti Ka Samman, double salary, like they'll give it double salary for all the Asha, Anganwadi and midday meal workers for. Then it is Adhikar Maitris. So in this, they will be in villages. In every villages they'll be checking whether the legal rights of women are being protected and given properly or not. The last one, that is Savitribai Phule hostels. So double number of hostels for all of the working youth women. These were the manifesto of Congress. We all saw it now. But next we are going to see the party which I said will win, BJP's. BJP has 10 guarantees, so now we'll see that in Modi's own mouth from speech. I took these videos from Indian Express YT and Annie News YT. So the original videos link in the description, so go check it out. We'll see one video of Modi talking in 26th of July 2023 and the second one where he'll say the guarantees. Now we'll talk about the bests: Adityanath Yogi, S. Jaishankar, Amit Shah and all of those other people. Like Modi ji is the main, but other party members were also there with him during this manifesto. मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले हैं। साथियों, भाजपा देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी। उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम
जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। बीते वर्षों में करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है। करोड़ों की संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं। लाखों लोग जॉब क्रिएटर भी बने हैं। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है। ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रूप में काम आएगा। जो लोग गरीबी से बाहर आए, इनको भी लंबे अरसे तक संबल की आवश्यकता है। नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है। हम जानते हैं अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन बढ़िया हो गया होगा, सारे पैरामीटर तबीयत के ठीक होंगे, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महीना 2 महीना ये चीजें संभालना। ये उनके स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है, उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवश्यकता होती है, ताकि किसी भी कारण से वो गरीबी में वापिस जाने के लिए मजबूर न हो जाए। इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव-गांव में बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत भी लाखों रुपयों में है, लेकिन मेरा अनुभव है हमारी माताएं बहनें उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से संभालती हैं। टेक्नोलॉजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर को इसके एक धुरा के रूप में ये हमारी ड्रोन दीदी प्रस्तावित हो जाएगी। साथियों, हम गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में देखते हैं। इसलिए खेती हो, पशुपालन हो, फिशरीज हो,
सबको सशक्त कर रहे हैं। ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालक भाई बहनों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएगी और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं। देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। कुछ महीने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू हो चुकी है। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए हम श्री अन्न सुपर फूड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 21वीं सदी के भारत की बुनियाद भाजपा 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत करने जा रही है। पहला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। विशेषकर ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके लिए हम हाईवेज के पास उनको सफिशिएंट रेस्ट मिले, एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं ताकि ड्राइवर सफर के दरमियान हाईवे पर जो समय उसको स्नान के लिए चाहिए, अन्य सुविधा के लिए चाहिए, रेस्ट करना हो तो उसको मिले। तो ऐसे बारीक बारीक अनेक क्षेत्रों को ढूंढ करके हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहे हैं। दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए हम देश भर में हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे उनको आधुनिक बना रहे हैं। तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं, 6G पर काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री 4.0 के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये उसकी बैकबोन होती है। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल 0 करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है। 1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा।
घर में बिजली तो मुफ्त होगी ही होगी, अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी। साथ साथ आज जो उसको स्कूटर कार के पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्था भी उसको मुफ्त में अवेलेबल हो जाएगी, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी मुफ्ती की तरफ जाएगा। So yeah guys, that was all for today's video. So if you like this video, of course you know what to do, right? That is just like, share and comment what you all think about these guarantees and which party has been the best one, and subscribe and press the bell icon. And until the next video, bye bye.